everyone, welcome to Maneuver. Guys, this is a session for the student, those who are preparing for the law CET 3 years and targeting the 2024. So in this part 1, basically we will discuss about from the modern history and question related to Mahatma Gandhi. So from general awareness section, last 2-3 years से continue static रिलेटेड क्वेश्चंस काफी रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में एंड स्टैटिक जीके से जो हिस्ट्री आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री एंड रिलेटेड टू महात्मा गांधी एवरी ईयर एंड डिफरेंट स्लॉट में यू कैन सी 1 or 2 क्वेश्चंस स्पेशली महात्मा गांधी से रिलेट करके क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है. सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू डिस्कस most important question related to Mahatma Gandhi. So basically in this session we will discuss 20 important question from the modern history and especially related to Mahatma Gandhi as well as related information also we will discuss here. So session को complete देखना, पूरा देखना काफी beneficial है and 1 से 2 marks आपका fix हो जाएगा एग्जाम में. इतना important ये session है as well as ये content आपको मिल जाएगा. So you can use it for revision purpose and you can make your own notes. So पूरा सेशन अच्छे से देखो एंड इफ यू वांट सो डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगा. आप इसको डाउनलोड करके रिविजन्स के लिए यूज भी कर सकते हो. ओके, सो नाउ सी हियर एंड हियर इज वन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस. सो इफ यू आर सीरियसली प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम्स लॉ एंट्रेंस के लिए, सो इफ यू आर मुंबई बेस्ड, सो नियर बाई दादर, बोरीवली, वसई एंड थाने लोकेशन के नियर बाई आप बिलोंग करते हो, तो यू कैन ज्वाइन अस फॉर द क्लासरूम प्रोग्राम के लिए. अदरवाइज इफ यू आर आउट ऑफ मुंबई, आउट ऑफ महाराष्ट्र, so you can join us for the live and online class के लिए join कर सकते हो. For any doubt and query you can call on these number as well as you can visit our website www.maneuveredu.com/law-entrance. Okay, so these all are the information and in this program you will get classroom and live lectures. अगर आप live के लिए join करते हो तो live and classroom के लिए join करते हो तो classroom lectures, e-books, shortcut method, doubt classes, everything recorded video for the preparation, topic wide test to improve your speed, WhatsApp group and most important mentorship. So these all are the feature of this program. So for any doubt and query you can contact to our counselor. They will clear your all doubt. Now see the question part. So first question is here, Gandhi ji returned back to India in which year? So very important and इससे relate करके एक important day से भी question form होता है exam में. So 1916, 1915, 1918, 1920. So which year Gandhi ji returned back to India from the South Africa? So इसका correct answer है 1915 and Mahatma Gandhi returned to India from South Africa in January 9, 1915. See, this date is very important because this date is observed as a NRI day, प्रवासीय भारतीय दिवस. ये भी एग्जाम में काफी क्वेश्चन फॉर्म होता है कि विच डे ऑब्जर्व एज अ NRI डे. तो ये रिमेंबर रखना, इसी डेट को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे. तो ऐसे ही हम क्वेश्चन पैटर्न पे डिस्कस करेंगे तो आपको इजीली रिमेंबर भी हो जाएगा एंड सारे फैक्ट भी आप इजीली अपडेट कर सकते हो. सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय गांधी जी. सो यहाँ पे देखो बुक्स एंड राइटर से एवरी ईयर क्वेश्चन आता है स्पेशली रिलेटेड टू महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद. सो स्पेशली हम यहाँ पे गांधी जी से रिलेट करके डिस्कस कर रहे हैं. तो गांधी जी से रिलेटेड जो भी बुक्स है वो आपका अपडेट होना चाहिए. सो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका आर ऑल ऑफ द अबव. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे आपको रिमेंबर रखना है विच बुक्स इज रिटन बाय महात्मा गांधी. सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर. द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज autobiography of Gandhi ji. This book cover the life of Gandhi ji from the early childhood through the from the 1921. It was published in the journal Navjeevan from 1925 to 1929. So these all are the additional details which will help you to understand the complete information related to question. ठीक है, तो पूरा डिटेल में यहाँ पे मैंने दिया है. फोटो भी यहाँ पे इमेज यूज कर लिया जिससे कि आपको इजीली रिमेंबर करने, उसको ऑब्जर्व, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्पफुल रहेगा. तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करना, सारे डिस्क्रिप्शन को जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसके बाद खुद से भी रिवाइज करना. आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा स्पेशली रिलेटेड टू महात्मा गांधी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज in relation to which of the following did Gandhi ji use the phrase post dated check on a crashing bank? very very important in statement ये जो गांधी जी ने दिया था, कौन से इवेंट पे दिया था वो काफी इंपॉर्टेंट है. सो कैबिनेट मिशन, साइमन मिशन, क्रिप्स मिशन एंड मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म. सो कौन से मिशन से रिलेट करके बेसिकली इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, काफी इंपॉर्टेंट है. सो रिमेंबर रखो क्रिप्स मिशन. सो क्रिप्स प्रपोजल टू डिक्लेयर द इंटायर इंडिया वाज टू बी dominion and after the war its constitution was to be framed by
an elected body which was to be accepted by the British government, Gandhiji said that Cripps' offer of dominion status after the war was the post-dated check drawn on the crashing bank. So ये statement गांधी ने दिया था इस इवेंट पे, तो रिमेंबर रखना. सो काफी इंपॉर्टेंट है, उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी मैंने यहाँ पे दे दिया है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी स्टैब्लिश द नेटाल इंडियन कांग्रेस NIC इन कौन से ईयर में इन्होंने स्टैब्लिश किया था? बेसिकली इन साउथ अफ्रीका. सो 1894, 1895, 1950, 1920. So which year this Natal Indian Congress was established by the Gandhi जी? So correct answer है 1894. and frequently आप NIC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC से रिलेट करके काफी क्वेश्चन देखते हो, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी फॉर्म होता है. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश 1885, ये रिमेंबर रखना. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है विच वाज एस्टैब्लिश इन इंडिया 1885. एंड यहां पे बात हो रही है गांधी जी एस्टैब्लिश नेटाल इंडियन कांग्रेस, ये साउथ अफ्रीका में बेसिकली था. ओके, सो रिमेंबर रखो कौन से ईयर में, 1894. सो बेसिकली हम गांधी जी से रिलेट करके डिस्कस कर रहे हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इंफॉर्मेशन है तो वो आपको अपडेट करना है. हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी जी? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली, मतलब मैं बोलूं तो एवरी ईयर किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है. सो हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी जी? सो गोपाल कृष्ण गोखले, दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर एंड बाल गंगाधर तिलक. Okay, so what is the name of the personality who was the guru of Mahatma Gandhi? So correct answer इसका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले. Mahatma Gandhi used to seek the opinion of the Gopal Krishna Gokhale through the letter from South Africa. Gokhale was the one who persuaded Gandhi to come back to India. इन्होंने ही गांधी जी को इंडिया बुलाने के लिए राजी किया था, बेसिकली मनाया था. So invest the time understanding the India and work of Indian independence struggle movement. So Gandhi, the political guru of the Mahatma Gandhi was the गोपाल कृष्ण गोखले. तो बेसिकली इन्होंने ही, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही गांधी जी को इनवाइट किया था कि इंडिया में आओ, यहाँ के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करो एंड देन व्हाट वी कैन डू फॉर इंडिया, वो स्टार्ट करते हैं. सो ये रिमेंबर रखना, इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये नाम आपको रिमेंबर रखना, काफी फ्रिक्वेंट एग्जाम्स में आते हैं. नेक्स्ट वन, हु कॉल द फादर ऑफ नेशन टू गांधी जी? इस साल भी बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुए, लॉ में भी रिपीट हुआ 3 years, 5 year एंड BEd के जो सारे अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उन सब में ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ, तो आपको ये रिमेंबर रखना है. सो रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले आर नन ऑफ दीज. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु गिवन दिस टाइटल टू गांधी जी? फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता जिसको हम बोलते हैं, बापू बोलते हैं. सो ये टाइटल किसने दिया, फादर ऑफ नेशन का टाइटल गांधी जी को? सो करेक्ट आंसर इसका है सुभाष चंद्र बोस. सो महात्मा गांधी वाज नोन एज अ फादर ऑफ नेशन, बट देयर इज नो लीगल बैकअप फॉर दिस टाइटल फ्रॉम the government of India. So Subhash Chandra Bose claimed Mahatma Gandhi as a राष्ट्रपिता on a radio program in Singapore. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था कि कौन से प्रोग्राम में सुभाष चंद्र बोस ने फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज किया था राष्ट्रपिता का फॉर महात्मा गांधी के लिए. तो रिमेंबर रखना, ये टाइटल जो फादर ऑफ नेशन का है किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने दिया है. ओके, काफी सारे फिल्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ जो कि हाईली रेलिवेंट है आपके एग्जाम्स के लिए. तो अच्छे से रिवाइज करना, वीडियो को पूरा देखना एंड अगर से अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड गांधी जी डिस्क्राइब एज हिज 2 lungs? सो गांधी जी ने जो 2 lungs का यहाँ पे एक फिलॉसफी दिया है, तो व्हाट इज इट? अहिंसा एंड पीस, ट्रूथ एंड पीस, अहिंसा एंड ट्रूथ एंड ब्रह्मचर्य एंड अपर ग्री. सो व्हाट इज द 2 things which is 2 lungs as per गांधी जी? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहिंसा एंड ट्रूथ. सो एक्सप्लेनेशन जो इसका है, गांधी जी डिस्क्राइब द अहिंसा and truth as his lung during the moment of satyagraha. Gandhiji believed in the principle of ahimsa. He started the condition to impotent and anxious, but he wanted to show that each moment he is involved take the essence of non-violence. So non-violence वाला जो principle basically इन्होंने दिया है अहिंसा and truth का, these 2 lungs which is described by the Mahatma Gandhi. Just remember. Next question जो यहाँ पे, in which South Africa unit had most of the Indian immigrants taken up abroad? So is it Johannesburg, Natal and Martinsburg, Durban? Okay, so ये साउथ अफ्रीका से बेसिकली रिलेट करके क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेताल. ओके, नेताल इज द साउथ अफ्रीकन यूनिट इन विच मोस्ट ऑफ द इंडियन इमिग्रेंट्स हैड टेकन ऑफ abroad. सो जस्ट रिमेंबर रखो नेम ऑफ दिस प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी लेंथी है, बट कंप्लीट इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करोगे तो काफी इंपॉर्टेंट है. व्हाइल होल्डिंग अ फर्स्ट क्लास टिकट, गांधी जी वाज ordered by the railway official to shift to the
van compartment on his refusal to comply with the unjust order, a constable was called to push him out with bag and baggage. Identify the railway station where this incident took place. तो कहां पे ये इंसिडेंट हुआ था जहां पे गांधी जी को बेसिकली उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? यही एक इवेंट था जब गांधी जी ने डिसाइड किया कि अब हम ब्रिटिश को इंडिया से उखाड़ के फेंक देंगे. सो बेसिकली स्टेशन का नाम पूछ रहा है. सो नेताल, जोहान्सबर्ग एंड मार्टिन्सबर्ग, डरबन. ओके, सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मार्टिन्सबर्ग. पीटर्स मार्टिन्सबर्ग इसका फुल नेम है. तो गांधी जी इज फोर्सिबली रिमूव फ्रॉम द व्हाइट्स ओनली ट्रेन कैरीज ऑन 7 June 1893. Mahatma Gandhi, later known as a Mahatma R. Great Soul, was forcibly removed from the white only carriage on the train in the Peters Martinsburg for not obeying law that segregated each carriage according to the race. So basically यहीं से गांधी जी ने डिसाइड किया था कि हम ब्रिटिश को इंडिया से बाहर कर देंगे. तो एक क्वेश्चन अगर पूछ लिया ऐसे स्टेशन का नाम, तो आपको उस प्लेस का नाम पता होना चाहिए. नेक्स्ट जो है, एट विच प्लेस वॉज गांधी जी अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर सेडिशन? सो बॉम्बे, पुणे, कोलकाता, अहमदाबाद. सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फर्स्ट टाइम गांधी जी वॉज अरेस्टेड, सो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद. एंड महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड एट साबरमती ऑन 10 March 1922 एंड सेंटेंसेस टू 6 year जेल फॉर सेडिशन. सो बेसिकली राजद्रोह, एज पर द ब्रिटिश राजद्रोह के मैटर में इनको 6 साल का जो जेल हुआ था. ओके, सो फर्स्ट टाइम अहमदाबाद, रिमेंबर रखो. नेक्स्ट यहां पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द गांधी जी इरविन पैक्ट साइन? वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी फ्रीक्वेंट एग्जाम में पूछा जाता है. दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम. सो March 1, 1932, March 5, 1931, March 10, 1935, March 7, 1937. ओके, सो गांधी इरविन पैक्ट व्हेन इट वाज साइंड? सो करेक्ट आंसर है March 5, 1931. रिमेंबर रखना, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है. सो मॉडर्न हिस्ट्री से गांधी जी से रिलेट करके एकदम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है वही क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो याद रखना. सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1938. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी एग्जाम में पूछा गया है. विद गांधी जी गुडविल, ही वॉन्टेड टू सेकेंड टर्म बट गांधी जी डिड नॉट अप्रूव ऑफ इट. Despite the disapproval, Bose fought the election and won it, defeating the official candidate by over the 200 votes. Gandhiji took it as a personal defeat. Identify the candidate. It means what was the name of that official candidate of INC? So Lala Lajpat Rai, he was the Lala Lajpat Rai, Jawaharlal Nehru, पट्टाभी सीतारमैया एंड सरोजनी नायडू. तो जो उनके अगेंस्ट, मतलब उनके अपोजिट में थे सुभाष चंद्र बोस के, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लीडर, बेसिकली यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है. सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया. सो इन 1938 बोस वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय डिफीटिंग द पट्टाभी सीतारमैया हु वाज द सपोर्टेड बाय द गांधी हिमसेल्फ. सो यहां पे रिमेंबर रखना, फोटो के साथ मैंने लिया है, काफी इजी होगा आपको रिमेंबर करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय महात्मा गांधी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट राउंड टेबल conference, third round table conference, second round table conference are both A and C. Okay, so इसका correct answer हो जाएगा second round table conference which was held 7 September 1931 and first round table was, आपके knowledge के लिए बता रहा हूँ कि it was held November 1930 to January 31. Okay, so second round table which was attended by the Mahatma Gandhi, ये remember रखना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे, गांधी जी फर्स्ट मेजर स्ट्रगल इन द कंट्री वाज स्टेज ऑन द सोल ऑफ चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार 1917 इन कनेक्शन विद द इंडिगो प्लांटेशन, who was largely instrumental in persuading Gandhi ji to visit Champaran and lead the struggle over there. So basically what is the name of the person who invited Gandhi ji to support this campaign, जो चंपारण कैंपेन था? सो बेसिकली इंडिगो कल्टिवेशन जो काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है, और दिस इज आई थिंक फर्स्ट सिविल डिसओबीडिएंट moment of the Gandhi ji. Okay, so from here Gandhi ji started the campaign in India. So what is the name of the person who invited Gandhi ji? So Rajendra Prasad, Rajkumar Shukla, Dharinder and Sambhu Sharan. Okay, so what is the name of the person? So correct answer is Rajkumar Shukla. Remember rakho, the Champaran Satyagraha 1970 is considered to be a vital event in the history of India's freedom struggle. It was the first India civil disobedient movement launched by Mahatma Gandhi. So ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको रिमेंबर रखना है. ओके, सो आप देख सकते हो एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ. अकॉर्डिंग टू द गांधी जी, द खिलाफत इशू ऑफर्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द कंट्री. ही अर्ज्ड हिंदू टू lend full support to Indian Muslim on this issue. The Khilafat issue related to the policy of British government toward
which countries? So it's related to Turkey, Afghanistan, Iran and Iraq. So basically जो खलीफा रूल था वो एंड हुआ था आफ्टर द ब्रिटिश मूवमेंट. सो इंडिया में भी इसको लेकर के मुस्लिम्स काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो हिंदू एंड मुस्लिम, गांधी जी ने हिंदूज को बेसिकली सजेस्ट किया कि नाउ सपोर्ट मुस्लिम, सो जिससे कि एक यूनिटी बन सके हिंदू एंड मुस्लिम में अगेंस्ट द ब्रिटिश. ओके, सो ये बेसिकली खिलाफत मूवमेंट जो है, खिलाफत एंड खलीफा रूल, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? सो these all are the options. So correct answer is Turkey. So Khilafat movement was protest against the sanction placed on the Khalifa and the Ottoman Empire after the First World War by the Treaty of Sevres. The movement collapsed by the late 1920 when Turkey gained more favorable diplomatic position and moved toward the secularism by 1924. So basically जो खिलाफत movement and ये पूरा स्ट्रगल चला 1919 से लेके 1924 का जो पीरियड था वो पूरा पीरियड था. तो उसी में ब्रिटिश के अगेंस्ट जो मुस्लिम थे और मुस्लिम की हेल्प करने के लिए गांधी जी ने हिंदूज जो मेजॉरिटी पीपल थी उनको रिक्वेस्ट किया कि नाउ हेल्प मुस्लिम अगेंस्ट दिस कैंपेन. ओके, सो खिलाफत मूवमेंट स्पेशली फॉर द हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए गांधी जी का एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था. Which of the following slogan is associated with the name of Gandhi ji? Very very important question. Every year ये repeat हो रहा है बेसिकली ये क्वेश्चन. सो ये जो स्लोगन गांधी जी ने कौन से इवेंट पे दिया था ये आपको रिमेंबर रखना है. सो डू आर डाई स्लोगन, जय जवान जय किसान, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड इनकलाब जिंदाबाद. सो स्लोगन जो कि गांधी जी ने ये दिया था कौन से इवेंट पे दिया था एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्लोगन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी ईयर रिपीट हो रहा है. सो करेक्ट आंसर है डू आर डाई. स्लोगन डू आर डाई associated with Mahatma Gandhi. The slogan came into existence during the Quit India movement. Remember रखो, काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है. कभी हुआ था? 1942, 9 अगस्त 1942 ये इवेंट आपको रिमेंबर रखना है. Movement gave the slogan Quit India and भारत छोड़ो. This is also very important. So Quit India movement जो लॉन्च हुआ था 1942 में एंड इसमें जो गांधी जी ने करो या मरो का जो ये नारा दिया था डू आर डाई, ये आपको रिमेंबर रखना है. और आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर, अभी इस साल भी और इसके पहले ईयर भी, ये एवरी ईयर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट सेट अप बाय गांधी इन साउथ अफ्रीका? सो न्यूज़पेपर कॉल्ड इंडियन ओपिनियन, द नेटाल इंडियन कांग्रेस, द फोनिक्स आश्रम, द इंडियन लीग. सो विच वन इज नॉट एस्टैब्लिश फाउंडेड बाय द गांधी जी? बेसिकली द क्वेश्चन इज आस्किंग. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा द इंडियन लीग. एंड इसको भी आपने देखा, दिस इज द फाउंडेड बाय द गांधी जी एंड इंडियन ओपिनियन एंड फोनिक्स आश्रम, ये सारे गांधी जी ने एस्टैब्लिश किए थे. ओनली इंडियन लीग. सो इंडियन लीग को यहाँ पे आप देख सकते हो कि शिशिर कुमार घोष स्टार्टेड द इंडियन लीग इन 1875 with the object of stimulating the sense of nationalism amongst the people. So ये सारे न्यूज़पेपर्स एंड दोनों आश्रम आपको, ये इंस्टीट्यूशन, ये न्यूज़पेपर एंड ये आश्रम, ये आपको रिमेंबर रखना है. These all are started and established by Mahatma Gandhi. Next important question, which one of the following ashram was not set up by Gandhi? So this is also very important. So Phoenix ashram and Tolstoy form, सेवाग्राम and गांधी आश्रम. So कौन सा इसमें से गांधी जी ने फॉर्म नहीं किया, एस्टैब्लिश नहीं किया है? So Phoenix, I hope you people are aware, and Tolstoy ये भी है. सेवाग्राम जो कि आप महाराष्ट्र में नियर बाई वर्धा, नागपुर के नियर बाई है. So which one is not formed by the महात्मा गांधी? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी आश्रम जो कि साबरमती आश्रम है. ओके, सो दीज आर द डिटेल्स यू कैन रीड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी अंडरटुक द लॉन्गेस्ट नेशन वाइड टूर ऑफ हिज लाइफ नोन एज व्हाट? इट मीन्स दिस टूर इज नोन एज व्हाट? सो दांडी मार्च, हरिजन यात्रा, नॉन कॉपरेशन मार्च एंड एंटी रोलेट कैंपेन. सो विच वन इज अ लॉन्गेस्ट नेशन वाइड टूर ऑफ हिज लाइफ? सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हरिजन यात्रा. हरिजन यात्रा स्पेशली फॉर द अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए, सोशल रिफॉर्म के लिए गांधी जी ने ये स्टार्ट किया था. सो दिस इज अ नेशन वाइड, पूरे टेक द 9 मंथ का ये पूरा टूर था. सो दिस इज द लॉन्गेस्ट टूर ऑफ द गांधी जी. ओके, सो बाय द वे ये सारे गांधी जी ने स्टार्ट किए थे, बट इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट जो था वो था हरिजन यात्रा. ये आपको रिमेंबर रखना है. द ओनली एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट ओवर बाय महात्मा गांधी वॉज, इट मीन्स गांधी जी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच सेशन? बेसिकली द क्वेश्चन इज आस्किंग. सो काकिंदा 1923, बेलगाम 1924, कानपुर एंड गुवाहाटी. कौन से सेशन में गांधी जी वॉज द ओनली फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? सो काफी इंपॉर्टेंट है. बेलगाम 1924, महात्मा गांधी जी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द
Congress only one association of the session was held in Belgaum. So remember रखना 1924. So guys, these all are the most important and important question for your exam जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया. उस क्वेश्चन के साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी डिस्कस किया, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो वो डिटेल भी आप अच्छे से रीड करोगे तो फॉर श्योर एग्जाम में एटलीस्ट 1 and 2 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री एंड गांधी एरा से, और एवरी ईयर क्वेश्चंस आते हैं. ओके, सो इसको आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसको डाउनलोड कर लो. इसको अपने नोट्स अपने अकॉर्डिंग चाहो तो आप नोट्स भी बना सकते हो, स्पेशली important event, important information related to Gandhi era, which is very important for your exams and those who are planning and want to join us for your preparations. So here you can join us for the live class. Live class के लिए ज्वाइन कर सकते हो, क्लासरूम प्रोग्राम के लिए ज्वाइन कर सकते हो. अगर से मुंबई बेस हो एंड आउट ऑफ मुंबई हो तो आप हमें लाइव एंड ऑनलाइन क्लास के लिए ज्वाइन कर सकते हो, where the expert faculty will give you the training and help you for your preparations and complete syllabus को well organized way में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे आपका प्रिपरेशन काफी राइट वे में टू द पॉइंट सिलेबस के साथ कंप्लीट हो जाएगा. तो फॉर एनी डाउट एंड क्वेरी यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर. ऑफलाइन ऑनलाइन के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 8828581455, एंड ऑफलाइन के लिए एज पर योर नियर बाई लोकेशन आप किसी भी ब्रांच पे कॉल कर सकते हो, बोरीवली, वसई, दादर, थाने. एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज यू विल गेट द कंटिन्यू अपडेट एंड यू कैन फॉलो ऑन सोशल मीडिया वेयर यू विल गेट द एग्जाम रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन. ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो प्लीज ask in comments. Definitely I will reply. Okay, so see you in next session with the important general awareness related information which will be helpful for your exam. Jai Hind.